This is our class on paper 2 work power and energy, and we are starting from this question. You have to see कि ये question आपके, you have to see paper आपका जो book है, read and write वाली book है, उसमें check कर लो कि अगर ये question आपको वहां मिल जाए तो वहां solve करो. वालेकुम अस्सलाम. A small block is lifted vertically upward. जैसे मैंने सिखाया कि तुम लोग important terms को highlight करते जाओ अपने लिए भी और एग्जामिनर के लिए भी. एज द ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड द स्ट्रिंग ब्रेक्स. ये उसको पिक कर रहा था जैसे कि टाइप ऑफ अ स्मॉल एयरक्राफ्ट है और द ब्लॉक इनिशियली कंटिन्यूज मूविंग अपवर्ड एंड देन फॉल्स एंड हिट्स द ग्राउंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0. द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज शोन. ये वो इनर्शिया वाला चक्कर है. स्ट्रिंग टूटेगी तो ब्लॉक फौरन नीचे नहीं जाएगा बल्कि पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया और फिर वहां से नीचे आएगा. This is a case here, and now you should see this whole situation. So you must have seen the sketch. देखो sketch ऊपर से आया. It took an intercept at point 20, and then he says air resistance is negligible. तभी नजर आ रहा है कि straight line आ रही है. Velocity time graph has a straight line, which means gradient is constant, and it's apparently the gradient is acceleration due to gravity equal to g. State the feature of the graph to show the block has a constant acceleration. तो तुम एग्जामिनर को बताओगे कि देखो लाइन स्ट्रेट है. स्ट्रेट लाइन का मतलब है कांस्टेंट ग्रेडियंट और यहाँ ग्रेडियंट एक्सेलरेशन है. तो जिनके पास ये क्वेश्चन अवेलेबल हो रीड एंड राइट वाली बुक देख लेना. उसमें लिखना कि पार्ट ए का आंसर स्टेट द फीचर ऑफ द ग्राफ इन फिगर 2.2 दैट शोज द ब्लॉक हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. उसमें लिखना कि आंसर you can write if you want to, otherwise you can have it on your vision. Line is a straight, comma, gradient is constant. Use figure 2.2 to determine the height of the block above the ground when the string breaks at time t is equal to 0. Height of the block above, height is a distance. Height is a distance and distance is the area under the graph. Height of the block above the ground when the string breaks at t is equal to 0. So this is a technical question because the question says the string breaks at t is equal to 0, but the block initially continues moving upward and then fall and hits the ground. यानी अगर रस्सी यहाँ टूटी ना तो ब्लॉक पहले थोड़ा सा ऊपर गया और वहां से नीचे आया. अब ये इसका ट्रिकी पार्ट है. तो तुम्हें ये तो पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल, दैट्स फाइन, but how we should know what area we should calculate? I shade the area and you should tell me कि देखो ये एरिया तो वो है जिसमें ब्लॉक ऊपर गया और ये वाला जो एरिया दूसरा वाला है जिसको मैं रेड में शेड कर रहा हूं, ये वाला देखो, ये एरिया वो है जिसमें ब्लॉक नीचे आया बिकॉज इट्स बिलो एक्स एक्सिस, इट्स अ डाउनवर्ड मोशन. But when the string was broken, the block was here, and he's asking for
this height. He is asking for this height. और मैंने आपको normal lectures में समझाया कि there are 3 documents available when you are solving papers. One is the marking scheme, well known, everyone use it. Second is examiner report. Examiner reports are critically important if you want to get a very good result, especially if you want to get an A grade. Then examiner reports are must to follow, especially for theory questions. Examiner reports all actually do not tell the right answer only. They tell you the approach, they tell the wrong answers, many other things. Another document which is very important is the student response booklet. It's critical, very important. तो अब ये क्वेश्चन है नवंबर 2021 का 2. तो मैं इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट खोलता हूं, आप मुझे मीनवाइल paper is 2 no, sorry, I think I moved the screen. Paper is 2-1. Paper is 21. Now see this one. We are doing part number B. Candidates usually attempted to apply the equations of uniformly accelerated motion. Some candidates incorrectly thought the displacement over the first 0.2 second or the displacement over the last 0.70 second represent the height of the block when the string breaks. So these are the 2 common approaches people followed. Some people, he said कि कुछ लोगों ने ना equations of motion भी लगाई. अब तुम ये समझ लो कि मैंने तुम्हें डायग्राम से बता दिया. Area above x-axis is for the extra upward motion. The red area is the total downward motion. तो अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए so that I can find the height. शाबाश, suggest me an answer. मैंने आपको गाइड कर दिया. नहीं सलीम, अगर सिर्फ एरिया लूंगा हाफ इंटू 1.9 इंटू 0.2 तो उससे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्लू एरिया जो है ना, इट्स फॉर द अपवर्ड एक्स्ट्रा अपवर्ड मोशन. हमें तो चाहिए जब ये रस्सी टूटी है ना उस वक्त की हाइट. तो ब्लू और आई एम सॉरी, ब्लू और रेड ये दोनों एरिया सूट नहीं कर रहे. एरिया तो सूट कर रहा है बट ब्लू और रेड दो अलग एरियाज हैं. हाँ राइट, दैट इज गुड. फाइन, आई गॉट इट. आपने दोनों एरियाज को माइनस किया, यही तरीका बेस्ट लग रहा है. दैट एरिया अबव माइनस एरिया बिलो. आंसर नेगेटिव आए तो नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता. हाँ ठीक है, अब सॉल्व करके आंसर शेयर कराओ.
Salim has given me an area of 2.2. वो तो डायग्राम तो दिख रही है, इसी से कैलकुलेट करना है। एरिया अबव एक्स एक्सिस और एरिया बिलो एक्स एक्सिस, इनको माइनस कर दो। दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों को माइनस करो। क्विकली सॉल्व करके आंसर दे दो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा ना, इस वाले पे लगेगा हाफ इंटू 0.2 इंटू 1.96 और इस वाले पे लगेगा हाफ। अच्छा, ये 0.9 और 0.2 का डिफरेंस है तो 0.7 हो जाएगा और 6.86। अब ये दो एरियाज हैं, इसको मैं कर देता हूं A1 और इसको A2, और तुम लोग मुझे करके दो A2 माइनस A1, जो कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। जो ये ऊपर गया है ना, वो हट जाएगा उसमें से। कैलकुलेट करो सब लोग। 2.2, यस, गुड आंसर, 2.2 मीटर। सलीम के पास भी यही आंसर आ रहा है। सही है, गुड मुमताज। आगे चलते हैं, ठीक है, हमने मिलकर ये वाला पार्ट कर लिया। द ब्लॉक हैज अ वेट ऑफ 0.86। कैलकुलेट द डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक बिटवीन 0 एंड 0.9। अब हमें 0 और 0.9 के बीच में हाइट तो पता चल गई है। फॉर्मूला क्या होता है जब तुम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, तो तुम कहते हो डेल्टा ईपी। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है, मैंने ये बात मिड टर्म में भी समझाई थी कि फॉर्मूलाज आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूलाज। अब ये पूरा mg 0.86 कर लेता हूं, और डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टाइम 0 एंड 0.9। तो अब मुझे ये करके दो। ये पूरा mg है ना, पूरा वेट है। 0.86 इंटू 2.2। सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल रखना, सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल रखना, क्योंकि आंसर में उतनी सिग्निफिक होनी चाहिए जितने क्वेश्चन में है। क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि he is preferring two significant figure. ठीक है, 1.9 looks fine. On figure 2.3, sketch a line to show the variation of the distance moved by the block with time t from 0 till 0.2. Numerical values of distance are not required. Sketches बहुत tricky होते हैं, and I always get a query that many good students always ask that मार्किंग स्कीम में तो स्केच नहीं दिए होते। बिल्कुल लेटेस्ट मार्किंग स्कीम्स में कुछ एमसीक्यू स्केचेस वगैरह डिस्कस हुए हैं, लेकिन रेगुलर पुरानी मार्किंग स्कीम्स में स्केचेस के बारे में डिस्क्रिप्शन होती है, स्केच बना हुआ नहीं होता ना। तो मैंने आपको बताया था कि वी हैव अ ब्लॉक स्पॉट फिजिक्स, मैंने उसको कई मर्तबा पोस्ट किया है, फिजिक्स ब्लॉक स्पॉट। दिस इज अ वेरी गुड ब्लॉक, एंड
this is AS Physics Blogspot, and this guy has done a good number of sketches, plot किए हैं sketches, तो जरूर देखना. और मैंने अपनी वेबसाइट को भी दोबारा पोस्ट किया है ताकि पीपल वांट टू हैव दैट. तो ये लिंक्स होते हैं, ये लिंक्स बड़े काम आते हैं क्योंकि आप थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करो. आई ऑलवेज प्रीच दैट कि देखो 2 क्वेश्चन कर लो, 4-5 MCQ कर लो, बट डेली करो और टॉपिकल करो. जैसे वर्क पावर एनर्जी चल रहा है तो उसी को फॉलो करो, फिर उसके बाद दूसरे सवालों पे आ जाओ. द पैटर्न यू फॉलो इज ऑलवेज टॉपिकल. जनवरी एंड फरवरी आर एक्चुअली क्रूशियल बिकॉज मार्च में तो फिर डाउन साइड शुरू हो जाता है. ओके, अब मुझे बताओ, स्केच अ लाइन टू शो द वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस मूव बाय द ब्लॉक विद टाइम t. अब डिस्टेंस मूव जो है y एक्सिस पे डिस्टेंस मूव्ड है. अब वो कह रहे 0 से 0.2. 0 से 0.2 हुआ क्या था? 0 से 0.2 ना, इट वाज गोइंग अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. वो फ्री फॉल होगा ना, रस्सी तो नहीं होगी. अच्छा, अब कर्व विद डिक्रीजिंग लाइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी कम हो रही है. सलीम कह रहे हैं और मुझे इनकी बात समझ में आ रही है कि देखो ये बेसिकली जो हमें ग्राफ बनाना है ना, ये वाला, इसमें ग्रेडियंट क्या है. मैंने आपको स्केचेस पर बहुत लंबा 1-2-3 क्लासेस करवाई थी, एंड ग्रेडियंट इज द मेन थिंग. ग्रेडियंट इज वेलोसिटी. ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी कम होती जाएगी. ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, फ्री फॉल, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज कर रही. ऐसे तुम सोचोगे और फिर तुम जब बनाओगे तो याद रखना कि ग्रेडियंट कम करना है. Gradient should be decreasing. I show you the examiner report so that you may have a habit of doing that. A minority of candidates realized that the gradient or sketch line would be equal to speed of the block. So drew a curved line from the origin with a gradient that decreased to 0. The most common incorrect answer was a straight line from the origin. अब वो जो ब्लॉक की स्पीड है उसका, वो कह रहे हैं जो ग्रेडियंट है वो स्पीड है. सो ड्रू अ कर्व्ड लाइन फ्रॉम द ओरिजिन विद अ ग्रेडियंट दैट डिक्रीजेस टू 0. ग्रेडियंट आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाओ और ग्रेडियंट कम करते करते लाइन को हॉरिजॉन्टल कर दो. 0.2 पे आपको 0 दिखाना है ना, नहीं डाउनवर्ड नहीं. देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, डाउनवर्ड नहीं बनेगा ना. डाउनवर्ड बन गया तो फिर तो आप डिस्टेंस को कम कर, डिस्टेंस तो बढ़ना चाहिए. देखो मैं यहां लिख देता हूं सो दैट फर्दर कंफ्यूजन डू नॉट अकर. डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, सो आई शुड ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दिस. यू लाइक दिस. यहां पहुंच के वेलोसिटी को 0 हो जाना चाहिए. वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, डिस्टेंस से. अब तुम अगर देखो ऐसे वर्किंग कर लोगे, यूं पहले ऐसे माइंड वर्क कर लोगे ना, तो फिर कभी गलती नहीं होगी. ग्रेडियंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कम हो रही है और डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है. A block of greater mass is now released. This is their favorite question. They have asked it many times before also. The block of greater mass is now released from the same height with the same upward velocity. Air resistance अगर ना हो तो एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर होता है, फ्री फॉल. Remember the concept of feather and a stone. It doesn't matter how much the greater the mass is. If the air resistance is not there, acceleration is constant. यही होता है ना. तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो अगर मास बढ़ा भी दो तो क्या फर्क पड़ेगा. ये तो कॉन्सेप्ट है ना कि तमाम चीजें एक ही एक्सेलरेशन से गिरती हैं अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है. अब मुझे बताओ, ब्लॉक हिट्स द ग्राउंड, क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा इफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट देयर. ये थ्योरी पार्ट है ना. थ्योरी पार्ट के लिए एग्जामिनर रिपोर्ट्स को जरूर देखो और इससे तुम्हें फायदा होगा. आई एम लुकिंग एट दिस पार्ट. Most answers correctly stated that there would be no effect on the speed with which the block hits the ground, but the required supporting explanation was often incorrect or omitted. वो कह रहे हैं बहुत सारे बच्चों ने ना आंसर ठीक लिखा कि इफेक्ट नहीं होगा, हाँ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट देयर ना. तो बहुत सारे बच्चों ने कह रहे आंसर सही लिखा बट उन्होंने
रीजन सही नहीं दिया तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि देखो एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है, तो ए इज इक्वल टू जी, और इसका मतलब है कि सेम एक्सेलरेशन है, सेम एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है नो चेंज इन वेलोसिटी। जून 20, जून 20 पेपर है 2-2 और क्वेश्चन नंबर है 3। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाट इज meant बाय वर्क डन। व्हाट इज meant बाय वर्क डन, तो डेफिनेशन क्या होगी? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स and the distance traveled in the direction of the force. A ball of mass 0.42 kg is dropped from the top of a building. The ball falls from rest through a vertical distance of 78 meters to the ground. Air resistance is significant so that the ball reaches terminal velocity. Before hitting the ground, the ball hits the ground with a speed of 23. Calculate for the ball falling from the top of the building to the ground decrease in gravitational potential energy. So I will write the formula. I have written the formula. Mass दिया हुआ है 0.42 और हाइट दी हुई है 78. So let me get the answer. आप लोग मुझे आंसर निकाल के दो. सिग्निफिकेंट फिगर्स चल रही हैं दो, 2 सिग फिगर वर्किंग. ओके मुमताज आप कह रही हैं 320, ये राउंडेड आंसर है. ठीक है, गुड. Then we have increase in kinetic energy. I go for the formula delta EK is equal to half m v square minus u square. So from the ball falls from rest. लिखा हुआ है ball falls from rest. Initial 0 कर देता हूं और speed to hit is 23. Mass है 0.42. फॉर्मूला लिख दिया 0.42 और 23 स्क्वायर minus 0 square. Now this is the calculation you have to do for me. You are getting 111, तो मुझे इसको 2 सिग फिग पर करना है, तो I make it 110.
Now we have reached here. और अब पढ़ो. Use your answer to B part 1 to determine the average resistive force acting on the ball as it falls from the top of the building to the ground. So air resistance is present. So we can make the well-known equation of energy transformation. So I can say loss in potential is equal to gain in kinetic plus work against resistance. This is called equation of energy changes. They are very important and should always be used when you are needing it. 320 गया था इससे, तो मैंने लिखा 320. यहां मैंने जानबूझ के लिखा 111. जब आप एक आंसर को अगले पार्ट में शिफ्ट करें तो रिमेंबर कि वो जो अगला पार्ट है उसमें राउंडेड आंसर शिफ्ट ना करें, प्लस वर्क डन निकल आएगा इससे. ठीक है. जब आप वर्क डन निकाल लें तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हमें एक्चुअली निकालना है फोर्स. हमारे पास डिस्टेंस यानी हाइट है 78 मीटर. आप पहले वर्क डन निकाल लो और फिर फोर्स निकालते हैं. वर्क आप लोग बताओ. नीचे 78 रख देंगे फिर ना, तो ये कैलकुलेशन करके दो. पहले वर्क डन निकालो. तो पहले इसमें डेल्टा वर्कडन बता के ना, फिर वर्कडन ला के वर्कडन तुम्हारा निकल आए तो यहां रख दो और फिर सॉल्व करके आंसर बताओ. चलो यार क्विकली बताओ, काफी टाइम लग गया. फर्स्ट यू फाइंड द वर्क डन, माइनस करके वर्क डन आ जाएगा और फिर उसको 78 से डिवाइड कर दो. .7 looks fine to me. The ball in B is dropped at time t is equal to 0 and hits the ground at time t is equal to t. The acceleration of free fall is g. Acceleration of the ball, when इसमें ना acceleration आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप करेगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट. तो बॉल जब नीचे आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन कम होगा. जब वेलोसिटी टर्मिनल हो जाएगी यहां पहुंचकर तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. ये वो कॉन्सेप्ट है विच इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट इन आवर ए लेवल फिजिक्स. वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट एवर इन आवर फिजिक्स. सबसे ज्यादा इस पे तुम्हें रिपीटेशन मिलेगी. और याद कर लो कि मैं
when something is falling through air, its velocity may increase, but acceleration decreases. Yes, आएगा. Before hitting the ground, the ball has reached terminal velocity. So it means the ball will be at zero acceleration before capital T. I think we have done this question also before. So let's try this question. A cylindrical, this is June 19, 233. A cylindrical disk of mass 0.24 kg has a circular cross-sectional area as shown. The disk is on horizontal ground as shown. A force X of magnitude 8.9 Newton acts on the disk in a direction 30 degree to the horizontal. The disk moves at a constant speed of 0.60 meter along the ground. Determine the rate of doing work. देखो rate of doing work इसका मतलब होता है पावर. इस चैप्टर में जो इस चैप्टर के जिन क्वेश्चंस में हुक्स लॉ आ रहा है डिफॉर्मेशन, वो मैंने अभी छोड़ दिए क्योंकि अभी मैंने हुक्स लॉ नहीं करवाया डिफॉर्मेशन ना, तो इसलिए वो क्वेश्चंस जो है मिक्स हैं. तो अब वो कह रहे हैं डिस्क मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड of 0.6 meter per second along the ground. Determine the rate of doing work on the disk by the force X. Power is equal to work upon time. Speed दी भी हमें, या तो P is equal to FV लगाऊं क्या? I can try a formula P is equal to FV. V तो है मेरे पास, लेकिन मेरे पास फोर्स का मसला है कि फोर्स एंगल पे लग रही है. हमने सीखा है कि जब फोर्स एंगल पे लगती है तो हम उसको रिजॉल्व कर देते हैं. मैं इसको नीचे ले आता हूं क्योंकि फिर ये टेल पर आ जाएगी ना. अभी वो अपने हेड से जुड़ी हुई है. तो मैंने इस फोर्स को कनेक्ट कर दिया और अब आप इसको ना रिजॉल्व कर दो. इधर आएगा 8.9 cos 30 और इधर आएगा 8.9
sin 30. अब मैंने रिजॉल्व कर दिया। अब आप इसमें बताओ कि मैं फोर्स कौन सी इस्तेमाल करूं, साइन वाली, कॉस वाली? व्हाट फोर्स शुड आई बी यूजिंग? cos, right? 8.9, so I will use 8.9 cos 30 into 0.6. सही है, गुड। अब इसको लगाओ। फोर 4.6. The force X and the weight of the disc exerts a combined pressure on the ground of 3,500 Pascal. Calculate the cross-sectional area of the disc. Formula is pressure is equal to force upon area. So area is equal to force upon pressure. Pressure तो मेरे पास है, that is 3,500, लेकिन फोर्स मुझे निकालनी पड़ेगी। अब देखो ये डिस्क ऐसे रखी हुई है ना, ये फोर्स भी नीचे की तरफ है और डिस्क का जो अपना वेट है वो भी नीचे की तरफ है। वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो नीचे की तरफ दो फोर्सेस हैं, एक तो ये जो फोर्स x है इसका एक कंपोनेंट नीचे आ रहा है, और दूसरा जो है ना ये वाला जो जिसका अपना वेट है वो भी नीचे की तरफ है। तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि तुम वेट रखो प्लस 8.9 sin 30, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी 0.24 into 9.8 plus 8.9 sin 30। देखो ये वर्किंग, चूंकि हमें टोटल फोर्स चाहिए ना जो नीचे लग रही है, इसलिए मैंने दोनों को ऐड कर लिया। आंसर निकाल के दे दो। टेन 10.06। 10.06 कैसे आ रहा है? 3,500 तो बहुत बड़ा नंबर है नीचे। डबल चेक करो यार, नीचे नंबर काफी बड़ा है। हाँ 0.0019 हो सकता है, डबल चेक करने बाकी लोग भी। Newton's third law describes how force exists in pairs. One such pair of forces is the weight of the disk, another force y. अगर वेट की फोर्स नीचे लग रही है, जैसे मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, ये डिस्क है ना, तो अगर ये नीचे की तरफ वेट लगा रहा है तो ऊपर की तरफ जमीन का रिएक्शन आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप, अगर वेट डाउनवर्ड है तो जो y होगा वो अपवर्ड होगा, क्योंकि रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होती है। ये डिस्क जमीन पे रखी हुई है, इसने इसको रखा हुआ है, देखो ये इसने ग्राउंड पे रखी हुई है, ग्राउंड पे। तो इसका जो नेम ऑफ द बॉडी विच रिटर्न्स, तो इस पे जो रिएक्शन आएगा वो ग्राउंड से आएगा। ग्राउंड लिख दो या अर्थ भी लिख सकते हो। So we can say the reaction is coming from the ground because it's
अप्लाइंग अ फोर्स, चूंकि ग्रेविटी अर्थ पे लगती है, अर्थ वापस अलग आती है, तो बेसिकली ग्रेविटी तो है ही फोर्स ऑफ अर्थ ना, तो उसके रिएक्शन में एक ऊपर की तरफ भी फोर्स आएगी जो ये डिस्क लगाएगी, जो अर्थ है वो डिस्क को नीचे की तरफ खींचेगी और डिस्क अर्थ को ऊपर की तरफ खींचेगी. सो दिस क्वेश्चन इज डन एंड वी कीप इट अप टू हियर, और हम इसको फिर इंशाल्लाह जो हमारी अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.